हेलो एवरीवन। आई होप कि आप अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस चैनल का क्या नाम रखूं। तो फाइनली आई हैव नेम्ड दिस चैनल with the help of a group of students who suggested me this name at one point of time in my class. So that I am naming this as Skillix. Skillix का मतलब यहाँ पर स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड है. So basically what we see that today education is going through a phase where we are studying so many courses but still we're not able to bridge what industry demands. तो कहीं ना कहीं ये जो चैनल है वो आपको स्किल बिल्डिंग में हेल्प करेगा. दिस विल बी a good reference point for studying a particular course. Last few lectures we have discussed about the nature of management, the role of a manager, the skills of a manager, how management is universal in nature or not universal in nature. So in this coming up lecture we'll be discussing about the different styles of management, like Japanese style of management, American style of management, and where do Indian style of management stand. So let's start this lecture. I hope you will enjoy this. So the topic for the day is Japanese style of management versus American style of management. So when we talk about the style of management, we are talking about the orientation. The orientation means how does management actually works. So basically, in today's world, when we see that how many styles of management does actually exist, so generally we get these two kind of style of management. One is called the Japanese style of management, another is called American style of management. In the conclusion of this lecture, we'll also be talking about Indian style of management and where does Indian style of management stands actually. So watch this video till the end so that you can have a brief overview of all the topic. So let's begin with the Japanese style of management. एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ that how Japanese are different from Americans. As we all know that America and Japan were rivals to each other in Second World War, and due to this, Japanese never accepted American style of management, and Americans always had their own style of management. अमेरिका ने ही कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की स्टार्ट की थी, इसलिए दैट्स व्हाई दे हैड देयर ओन स्टाइल. बट अमेरिका जापानीज डिनाइड टू फॉलो दिस एंड दे डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल. उन्होंने अपना स्टाइल डेवलप कर लिया, जो कि बेसिकली उन्होंने वो जो स्टाइल बनाया वो कहाँ से बनाया, वो उन्होंने अपने कल्चर से बनाया. दे फॉलोड देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज. उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो किया एंड बेस्ड ऑन दैट they believed that whatever management style they are generating, that is deeply rooted in their culture. And hence, even though we can study Japanese style, but still it is impossible to copy it. हम पढ़ भी लेते हैं लेकिन उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द रीजन हियर इज दैट जापानीज पीपल, जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज कंप्लीटली डीपली रूटेड इन देयर कल्चर. तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कोई सी एग्जाम्पल से कि कितना ये वैरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, उनकी तीन स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं. पॉइंट नंबर वन इज डिसीजन बाय कंसेंसस. डिसीजन बाय कंसेंसस. So when we talk about decision by consensus, that means they always take decision based on everybody's consent. Till the time every employee of the organization is not ready with that decision, they will not follow that particular decision. सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, हमें हैरानी भी होती होगी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम करते हैं तो क्या 500 के 500 लोगों का एग्री करना जरूरी है? तो जवाब है यस, दे मस्ट एग्री, then only Japanese people will follow that particular decision, otherwise they will not follow it. Another important striking feature है कि जापानीज किसी भी टाइम पर 180 डिग्री का यू टर्न ले लेते. लेकिन इस यू टर्न में एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा, ये यू टर्न डिसीजन मेकिंग को लेकर बात हो रही है, लेकिन दे ऑलवेज हैव कंसर्न फॉर देयर पीपल. वो अपने लोगों का नुकसान करके ये यू टर्न कभी नहीं लेते. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. इनफैक्ट आई एम फॉलोइंग एन आर्टिकल फॉर दिस. मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक HBR का आर्टिकल है जो कि पीटर ड्रकल ने 1971 में लिखा था. उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन जापानीज स्टाइल. उन्होंने अपने इस आर्टिकल में एक एग्जांपल दी थी कि देयर वाज अ पर्सन इन जापान
वो पहले रेयन के बिजनेस में काम करता था, उसने अचानक सिंथेटिक फाइबर्स बनाने शुरू कर दिए। और ये जो डिसीजन, जैसे ही उसने ये डिसीजन लिया एंड ऑल द पीपल एग्रीड कि यस वी शुड शिफ्ट टू सिंथेटिक फाइबर, मतलब विद इन एक दिन में, ओनली वन डे, दे शट डाउन ऑल देयर फैक्ट्रीज ऑफ रेन। उन्होंने सारी रेन मिल्स बंद करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उस पर्टिकुलर डिसीजन में जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली थी, या एक चीज़ जो अच्छी थी, वो ये थी कि दे ऑलवेज केयर्ड फॉर पीपल। किसी का भी ले ऑफ नहीं हुआ था, एक भी एम्प्लॉय को उन्होंने निकाला नहीं था। Third striking feature of Japanese style of management is lifetime employment. The point here is that job security. Japanese has complete 100% job security. They never lay off their people. I have already given this point to you that they have a concern for their people. वो काफ़ी अपने लोगों का कंसर्न लेते हैं, इसी वजह से वहाँ पर किसी को भी जॉब से निकाला नहीं जाता। हायर एंड फायर फिलोसफी नहीं है, हायर एंड फायर फिलोसफी इज नॉट देयर। So in this lecture, what we'll do is, now we'll be comparing Japanese style with American style based on the various functions of management which we have already discussed. So let us begin. So let us talk about the planning part. हम सबसे पहले planning की बात करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, in American style of management they have a short term orientation. वो बहुत ही short term orientation से चलते हैं, क्योंकि profit motive है। They want to earn more profit. वो फायदा बनाना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी उनको फायदा लगता है वहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं एंड दे मूव इनटू इट। ऑन द अदरवाइज जापानीज इज बेस्ड ऑन कल्चर एंड हेंस दे ऑलवेज टेक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। वो एक दिन का फायदा नहीं देखते, हमेशा लंबा फायदे के बारे में सोचते हैं। ऑन द अदर साइड दे हैव इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन हमेशा एक बंदा लेता है एंड एवरीबडी फॉलोज। ऑन द अदर साइड कंसेंसस है, पहले भी हम बात कर चुके हैं दैट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, कंसेंसस होते हैं इन द जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप बॉटम मीन्स एक मैनेजमेंट है और उसके नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। दैट मीन्स यहाँ से डिसीजन लिया जाता है, एवरी एम्प्लॉय फॉलो, दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन टू, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, एम्प्लॉय कैन नॉट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बॉटम अप अप्रोच है, एम्प्लॉय फीडबैक देता है और फिर एम्प्लॉय के फीडबैक के बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। आई होप इट इज क्लियर। देन फास्ट डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है। फास्ट क्यों नहीं होगा, ओनली सिंगल पर्सन इज टेकिंग डिसीजन, एक बंदा डिसीजन ले रहा है। ऑन द अदर साइड इट इज स्लो डिसीजन मेकिंग, जितने भी एम्प्लॉय हैं सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, हेंस ऑलवेज द प्रोसेस विल बी स्लो। नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनाइजिंग। तो इन द ऑर्गेनाइजिंग व्हाट वी सी इज, यहाँ पर इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ही इज द वन हु इज टेकिंग डिसीजन, तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी जिम्मेदारी बनेगी, ही विल बी अकाउंटेबल। अगर कोई प्रॉब्लम आई, वो डिसीजन नहीं चला तो उसको पकड़ेंगे। यहाँ पर क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो डिसीजन काम नहीं किया या कोई एरर आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलेगा सजा। ऑन द अदर साइड यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर हिरार्की बनी हुई है कि एक सीईओ है, देन देयर आर सम एमडी, देन कुछ वीपी हैं, कुछ एमडी हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, यूनिट्स, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऑन द अदर साइड यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ही इनफॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर लैक ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिसिंग। ये तो होगा ही, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग है तो यहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है कुछ हद तक, यहाँ पर लोगों से काम लिया जाता है। ऑन द अदर साइड यहाँ पर क्या है, कल्चर कॉमन है, ट्रेडिशन से निकल कर आया है, इसीलिए जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन भी कर रहे होते हैं, दे नो व्हाट दे नीड टू डू, वहाँ पर उनको पता है कि उनको क्या काम करना है। सिमिलरली तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजिंग में पॉइंट्स थे वो ये थे। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन में हमें क्या पता चलता है, दैट इन स्टाफिंग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, वो तो ऑब्वियसली बात है। यहाँ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हायर एंड फायर पॉलिसी है, मतलब आपको हायर किया गया, फिर आपने काम किया, टिल द टाइम आप अच्छा काम कर रहे थे, यू आर बीइंग हायर्ड, टिल द टाइम एज सून एज यू विल स्टॉप वर्किंग और योर प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन, दे विल फायर यू, आपकी जगह किसी और को ले आएंगे। ऐसा जापान में नहीं होगा। लेस कंसर्न फॉर पीपल, प्रॉफिट मोटिव है इसीलिए लोगों का कंसर्न कम है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज़ की जा सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा। ऑन द अदर साइड यहाँ पर मोर कंसर्न है, और यही कारण भी है
उसकी उन लोगों की कमिटमेंट बहुत हाई है। सिंस ऑर्गेनाइजेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक फैमिलीज हियर। जैसे हम इंडिया में अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ते, हम किसी भी हाल में वी ऑलवेज स्टिक टू आवर फैमिलीज। सिमिलरली बट इन जापान ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक फैमिलीज, पीपल डोंट लीव देयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कैरियर है, यू आर ट्रेंड इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग मिल जाती है, इंजीनियरिंग में मिल गई, मैनेजमेंट में मिल गई, कंप्यूटर्स में मिल गई, और आप उसी फील्ड में काम करते चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जनरल कैरियर ऑफर किया जाता है, मतलब आपको मल्टी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हर फील्ड में काम कर सको। यहाँ पर रिवॉर्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पर एक इंडिविजुअल आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पर आपको ढेर सारे रुपीज मिलते हैं या डॉलर्स मिलते हैं, सॉरी। On the other side, if you talk about the reward system in Japan, what we see is completely based on group performance. अगर ग्रुप अच्छा करेगा तो आपको कुछ मिलेगा, अगर आप अच्छा कर भी रहे हैं लेकिन ग्रुप अच्छा नहीं कर रहा, you are doing good but group is not doing good, कुछ भी नहीं मिलेगा। Then we have is directing. अब डायरेक्टिंग में हमें क्या पता चलता है, लीडरशिप कैसी है, यहाँ पर इंडिविजुअल मोटिवेशन है। ऑब्वियसली सिंस पूरा ओरिएंटेशन ही इंडिविजुअल है, तो इफ मेरे को अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है तो मेरा मोटिवेशन बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ग्रुप मोटिवेशन है, सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एवरीबडी इज मोटिवेटिंग एवरीवन, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रुप का परफॉर्मेंस निकलेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना है, तभी उन्हें भी इंडिविजुअली फायदा होना है। टॉप डाउन कम्युनिकेशन, ऊपर से कम्युनिकेट होता है, टॉप से कम्युनिकेट होकर बॉटम तक जाता है। यहाँ पर क्या है, बॉटम अप, बॉटम वाले पहले बोलते हैं फिर टॉप तक बात पहुंचती है। लीडर एज द डिसीजन मेकर, यहाँ पर लीडर क्या है, लीडर ही सब कुछ है, उसको ही डिसीजन लेना है, अगर डिसीजन लेगा फायदा हुआ तो कंसिक्वेंसेस भी उसी के, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऑन द अदर साइड इफ यू लुक एट दिस वन, लीडर एज ए ग्रुप फैसिलिटेटर ओवर हियर, यहाँ पर क्या लीडर का काम है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, he will provide resources, he will हर्डल्स को हटाना, ये उसका काम है। और इसी वजह से जो ग्रुप, वो एक तरह से ग्रुप का फैसिलिटेटर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लास्ट वन ऑलरेडी नो, द फाइनल फंक्शन इज द कंट्रोलिंग फंक्शन। यहाँ पर एक सुपरवाइजर होता है हु ऑलवेज कीप ऑन सुपरवाइजिंग यू, वो आपका बॉस है, आपको लगातार देखता रहता है कि आप कैसा काम कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, कोई बॉस नहीं है, सब पीयर ग्रुप है, सब एक लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक लेवल वाले लोग ही एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो वो आपको बगल वाला ही बता देता है दैट यू आर नॉट वर्किंग, लेट्स वर्क। यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल अपने आप खुद करना पड़ता है, मतलब इफ आई एम नॉट डूइंग गुड आई हैव टू इंडिविजुअली वर्क ऑन इट। यहाँ पर क्या है, ग्रुप परफॉर्मेंस से कंट्रोल होगा। So this was all about the difference between the controlling the different American style of management and Japanese style of management based on different management functions. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, where do Indian style of management stands? तो अगर मैं इसको एक सिंपल से, आपने आप में से काफ़ी लोगों ने सैंडविच खाया होगा, तो सैंडविच्ड है, इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज सैंडविच्ड बिटवीन अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PSUs को देखते हैं इंडिया में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को देखते हैं, वो काफ़ी हद तक जापानीज यूनिट्स की तरह नजर आती हैं। ऑन द अदर साइड जब हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, जो कि वैसे भी बेसिकली ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया आर फ्रॉम अमेरिका, तो इसलिए उनका पूरा स्टाइल जो है वो अमेरिकन स्टाइल से इनहेरिटेड है। बट कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज का मोटिव भी अब प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बढ़ रहा है। वी आर मोर फैसिनेटेड बाय अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। द रीजन इज वी लैक दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ Japanese people। और इसी वजह से आप देखेंगे इवन when people are getting placed, when people are joining organization, they are not concerned about organization के लिए बिल्कुल भी concerned नहीं होते, they are thinking about their individual performance, they are thinking about, and similarly जो organization आपको hire भी कर रही है, they are also thinking the same way, उनका भी hire and fire policy है। अगर आप अच्छा काम करोगे they will reward you, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो वो उतना अच्छा आपको reward नहीं करेंगे, और either they can kick you out also। So that's what this was all about, styles of management। So there is no as such Indian style of management. Indian style management is basically inheritance from Japanese style of management as well as from American style of management। So thank you so much. I hope you enjoyed this lecture. This was all about styles of management. If you like my videos and you enjoy my lectures, then you can subscribe to my channel, and you can also push that bell button so that you can get notification for this particular channel. We'll meet in the next lecture on this particular topic. Thank you.